believe the concerned authority is already taking this issue because MNRE has also notified. So something will, the official notification will come regarding the back penalty days. Why deposit due date is not available in torrent application? Because in that case, क्योंकि torrent में सर आप पेमेंट करते हैं तभी आपका ड्यू डेट उसी दिन होता है. So if you have seen torrent, उसमें जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई आता है आपका पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है. पेमेंट ऑप्शन पे जिस दिन आप क्लिक करते हैं उस दिन ही आपका ड्यू डेट भी हो जाता है, पेमेंट डेट भी होता है. So that's why it is not there. Can we delete the application after deposit? So you can delete the application after the deposit is paid. For that, I've already shown there's a guideline number 10 जहाँ पे आपको डिस्काउंट में जाके application देना होगा with the consent letter. आप consent letter दीजिएगा, उसके बाद आपका application delete हो सकता है. And regarding the payments, you can discuss कि जो भी आपका deposit है उसका क्या होगा वो आप concerned discount से you need to discuss. But there is a provision to delete the application. Why portal is not in the mobile site? So right now it is not available in the mobile. So जो भी है आपको web पे ही है. But we'll definitely try to work on that part and surely we'll provide you the dashboard in mobile as well. Because of this portal is prepared for web, that's why all the features are not available. Issue subsidy quota is also that Piyush that issue is already resolved. अगर आपने 2 बजे के बाद चेक किया होगा तो MNRE का सब्सिडी का जो कोटा था torrent का that was over, which has been moved to the state, so that you will not face this issue of subsidy quota over. फिर दूसरा क्वेश्चन है commissioning data is auto fetch in execution when I claim subsidy, so how can select and change the date? Sir, commissioning date जो है वो आपका मीटर इंस्टॉलेशन डेट होता है, तो आपका वो डेट जो है वो सिस्टम जनरेटेड डेट है, तो दैट यू कैन नॉट चेंज इट. वो डिस्कॉम के साइड से ही आता है. Can we delete Harsh Goyal ji? Already I have replied to this question. Mayur ji, at work execution stage, in some application I don't get the start and end date. So अभी आपका स्टार्ट डेट जो होता है वो है कि जिस दिन की आपका फिजिबिलिटी का पेमेंट का स्टेटस पेड हुआ है, दैट इज द स्टार्ट डेट. एंड डेट इज जिस दिन आपका इंटीमेशन इज अप्रूव्ड, दैट इज कंसीडर्ड एज द एंड डेट एंड दिस इज द सिस्टम जनरेटेड डेट. तो अभी आपके सारे एप्लीकेशंस में वो ऑटोमेटिकली आएगा. जहां पे नहीं आ रहा है दैट मींस कि आपका मे बी इंटीमेशन अप्रूव नहीं हुआ है. स्टिल इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन जहां पे नहीं है, please mail us at info.suryaprasad@ask.com. We'll definitely check and respond. Is there any process to process after generating PCR code? Sir, after the PCR code is generated, there is no process for installers. So all the action is to be taken at the discom end. तो आपके एंड पे बस आपको ये वेट करना है कि आपका सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में आए. तो आपके एंड पे अगर और कोई क्वेरीज डिस्कॉम ने नहीं रेज किए तो देयर इज नो एक्शन टू बी टेकन. Okay, we are not receiving the amount of subsidy which is generated on portal after it. We are not receiving the amount of subsidy. Sir, आप सब्सिडी क्लेम में जाइए. सब्सिडी क्लेम में जाएंगे. So Chintan ji, this is replying to your question. आप सब्सिडी क्लेम सबमिट सब्सिडी क्लेम वाले विंडो में जाएंगे. वहां पे आपने जो ये सबमिट किया है इसमें आपको एक सब्सिडी का बॉक्स यहाँ पे आता है. The moment you will claim on that subsidy box, उसमें जो भी पेमेंट वहां से आई है उसका डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा. So if I can show you.
तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे सर तो आपको अगर पेटेंट आ गया है तो उसका डेटा नीचे आ जाता है. So that's how you can see the details of whatever the payment has been. Okay. So the next question is, Chetan ji, sir, reply to your question. Kevin is, sir, what actually discounts आकाश नो विरोधी बोल समानार्थी शब्द बोल आकाश नो समानार्थी कयो कहेवाय आकाश लखी गयो समानार्थी शब्द आकाश ने हमें कई जोड़वानुं एम बता જોઈ લીધું તાર બતાય મને આકાશ કઈ જોડવાનું જોડવાનું કઈ વાવ પછી ભગવાન કઈ જોડવાનું દોસ્ત હા પછી ઝાડ હજી મિત્ર વાહ વાહ બસ એવી રીતે શીખવાનું હોય જોઈ લીધું એવું નહીં જોઈ લીધું ચાલ અઠવાડવા રાત તો સવાર આવે સવાર છે મય આશરે આશરે બોલો આશરે આશરે બોલો આશરે આશરે બોલો પાછા આવે રાત તો ચક્રમ પાછળ વાળી જોયા વગર નહીં બોલ બોલ અંધારું તો અજવાળું આવે આગળ તો પાછળ જોઈ લીધું નહીં આવડતું ગોંડિયાન તારે લગ આમાં લગ મામા તો શું મામા તો મામી કશું નહીં ખબર કશું કશું ખબર કશું નહીં ખબર કશું નહીં ખબર બોલ બોલ તા હા હા બોલ હા ભાઈ તો બહેન 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 ભાઈ તો ભાભી દાસી દાસી છે હરકું આજ હરકું 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 દાદા પછી કે આવડી ગયું જોઈ લીધું ચાલ હરકી જો હરકી જો ચાલ બધા હે મિનેશ ના પિતાનું નામ રામાભાઈ છે અલી આ તો વિષય લખવાનું છે નોટ પેન્સિલ લેતા જા और ये सब मैनुअल एंट्रीज इसमें रिमूव की जा रही है in order to avoid the duplicacy or errors probability of error क्योंकि सर अभी कहीं कोई एंटर कलर क्रिएट कर देते हैं तो it becomes very difficult to track the things. So in past if I can't change so they told us to change the commission of the data. So commissioning date जो है सर बोल पहले हरखू बोल ना હવે ચાકડી છે હરખું બોલ specific application का ये इशू आया है चेंज नहीं हो सकती है सर इसमें क्या है इसमें क्या हो रहा है सर sometimes दोनों कमिट वैलिड आ रहे हैं कि कमिशनिंग डेट विद चेंज बट मीटर अप्रूवल दिखते हैं वो ऑटो बैच है वो लोग जैसे अप्रूव करते हैं तो मीटर अप्रूव की डेट ऑटोमेटिकली आ जाती है ऐसा नहीं कि इस तारीख की मीटर लगी है मेरा मीटर में लगा है 19 मार्च को और वो दिखा रहा है 28 मार्च को तो वो क्या विल बी चेंज सर देखिए कमिशनिंग डेट जो है इसलिए आपको बोला ना सर कि
आपको जो डिस्काउंट के एंड से जो डेट आ रही है ना वही डेट रहेगी। पहले आप सर वो लोग पीसीआर जनरेट करने में नहीं डालते, तो यू कैन चेंज द कमीशन रेट। मैंने आपको वही तो बोला, सब्सक्रिप्शन की बोला सर, आप एक बार इनपुट और उसको चाहते आप वो एप्लीकेशन नंबर के साथ मेल कर दीजिए, जो उनके नोडल ऑफिसर्स हैं डिस्काउंट्स के, वी विल कम्युनिकेट दिस टू द नोडल ऑफिसर। सर बिकॉज़ इट माइट हैपन कि डिवीजन आया है, बट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कि वो आपके एंड पे वो डेट नहीं चेंज सकती, उसको मेरा कहने का मतलब वो है सर कि उनको भी ट्रेनिंग की होगी कि जहाँ पे डार्क पोर्शन है वो ऑटो फ्रेश देता है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कुछ नहीं कर सकती उसमें, तो उसमें उनको भी ये क्वेरी डालने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसी मेरी डेट ऑफ कमिशनिंग चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने बोला था सर कि will not discuss on the process of the discount. इस पोर्टल से रिलेटेड आपको जो इश्यूज है सब हैप्पी टू सॉल्व। ठीक है सर, आपका जो इशू था we will communicate with the concerned nodal officer so that they can communicate to their concerned officer. So वो हम लोग कर सकते हैं, but क्या कर रहे हैं वो सर इसमें कमेंट नहीं कर नहीं देख रहे। I'm really sorry. So, Chairman Shah, there are some applications in this year which we cannot upload. So, that issue is long time back. It was very clearly clarified. In fact, portal पे भी डाल दिया था कि only those applications जो submit हो चुकी हैं होंगी before the time is over, उसमें signed document ही upload करना है, that considered as application submitted. तो अगर आपने किया है तो वो considered हो गई है, नहीं किया है तो at least for this year it is not being considered. You can do it next year. Can I submit a subsidy claim for one person? Yes, you can submit the subsidy claim for one person as well. Maximum it can be done for 10%. Ankit ji, it means 30 days due date criteria is not applicable for. So it is applicable, but you have noted a very good point. So we'll see how that 30 days will be calculated. वाचन चालू करायचं ઓલી હું વાંચવાનું ચાલુ કરીને અહીંથી તને કીધું હું લખું છું તો ગુજરાતીથી વાંચવાનું હું લખું છું ચાલુ કર જા सर पेमेंट रिलेटेड अगर इशू है तो आप एक ईमेल आईडी हम लोग प्रोवाइड करेंगे यूनिट का, यू कैन डायरेक्टली राइट टू दैट ईमेल आईडी विद द रिसिप्ट सो दैट आपका पेमेंट का अगर कोई भी पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है सो वी विल प्रोवाइड दैट ईमेल आईडी ऑन द पोर्टल एज वेल। वहां पे आप अपना रिसिप्ट नंबर कंज्यूमर नंबर के साथ आप ईमेल डाल देंगे तो आपका वो इशू टेकन केयर हो जाएगा। बिकॉज सर ये पेमेंट का डेटा जो है उधर से आता है, एट टाइम्स कभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है योजना में तो एट टाइम्स प्रॉब्लम। Is there any other process that you have already applied to this? In case the penalty is hello सर वो अभी हमने जो बोले ना 4 मंथ पहले वाला जो अभी एस्टिमेट था ना वो मैंने 10 बार मेल किया है, अभी तक उसका कोई डेडलाइन। मैं आपको बोला ना कि आपको पोर्टल पे हम आपको ईमेल आईडी ही दे देंगे रिलेटेड टू द पेमेंट है, आप उसी ईमेल आईडी पे डालिए आपको कि एंड पॉइंट वहीं पे से वो पेमेंट का डेटा अपडेट होते हैं तो वी विल प्रोवाइड यू द ईमेल आईडी इन द चैट इटसेल्फ। आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप उसी ईमेल आईडी पे मेल डालेंगे विद द रिसिप्ट। बस कुछ चीजें हैं जो मैम हम लोग भी वी कैन फॉरवर्ड इट, ठीक है, लेकिन एंड में जहाँ तक हो रहा तो मैं आपको वही ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे दे दीजिएगा, वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सर उसका मीटर तो लग गया है, अभी तक मीटर लग गया है, अभी आगे प्रोसेस नहीं हो रही है। मैं वही बोला ना मैम, आप एक बार मेल तो कर दीजिए ना in case when the penalty days are over, what will happen? Still the concerned agency will take
will issue the necessary guidelines. To till that one you can read, and if आपको more details चाहिए, you can contact the concerned response point. Sorry sir, in technical details and all professional quality I have already done. Subsidy amount detail है. अच्छा, subsidy amount details in MIS. So for MIS, for subsidy amounts, we are working on one more MIS जो आपका subsidy related MIS एक additional provide कर देंगे. So Ganesh ji, your point well taken. That will be provided shortly. अंकित जी, आपका मैंने क्लाइंट का पेमेंट में सर अभी हम एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे. पेमेंट रिलेटेड जो भी क्वेरीज है ना, उसमें आप पेमेंट का स्लिप और उसका कंज्यूमर नंबर, ये एक ईमेल जो ईमेल आईडी मैं दे रहा हूँ उस पर आप डाल दीजिएगा, सो दैट आपका डायरेक्टली वहां से सिलेक्शन हो जाएगा. ओके, so we have about 150 already submitted but can't approve. So already I have applied for this question and submitted the payment. So CI details all time number. Okay sir, that will see CI का आपका fetch करके रख सकते कि नहीं, but unmuted. Look into this. इसको हार्दिक जी आपका जो क्वेरी है सर कि बार-बार डालना पड़ता है उसको can do something, तो उसको कर देंगे. Okay, thank you sir. But in some cases, one of the pages are very concerned. So normally ये one of the 10 cases में ये कभी-कभी issues आते हैं कि मीटर नंबर रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो उसका एक पहला दो चीज ये देखना है कि इंटीमेशन आपने रिक्वेस्ट जनरेट की है कि नहीं, अगर की है तो अप्रूव हुआ है कि नहीं. अगर ये दोनों चीज हो गया है तब भी नहीं हो रहा है, तब there has to be some issue at the योरजा में कि वहां पे उन्होंने पूरा प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया है, that's why वो नहीं डेटा आ रहा है. So in those case you can mail it to us, we can check with the concerned IT teams of GNL, and उस केस में आपको केस टू केस we can provide solution. But स्टार्टिंग में आप ये दो चीज चेक कर सकते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन आपने जनरेट किया और उसको अप्रूव किया है कि नहीं. इन द MIS both the details are available. Few subdivision are saying we will approve information after the installation. सर अगर ऐसा है तो और उसके बाद please you can contact the office. Why we are not registering this job? Should this cause any trouble? No sir. This funds are already taken care of. They will make. They have made a provision. So some of the response are doing it, so you can check with the concerned response और आपको ये सबमिट हो जाएगा. I have seen that some response are doing it, so you please you can contact Amita ji, you can contact the concerned response. Directly nodal officers को बोले क्या बात है, आप उनसे check कर सकते हैं. It is not कर रही है. So penalty के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया है. I hope I'm audible. Provide us the subdivision email ID से okay sir, आप बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के सबडिविजन का email ID. We will try to get it from the MGVCL. आप सर एक email में डाल दीजिए info.sudhir पे. For that specific case, you can ask the response.
उसके बाद you have इंटीमेशन अप्रूव होने की इमीडिएटली विद इन अ डे कि सर हमारा यहाँ जो भी डेटा अपडेट होता है इट हैपेंस इन द प्रोडक्ट साइकिल में आपका ऑलमोस्ट सारे डेटा अपडेट हो जाते हैं कि लॉट ऑफ सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू दिस सो हर एक का टाइम स्लॉट्स है अगर आपका इंटीमेशन होता है तो मैक्सिमम विद इन अ डे मैक्सिमम विद इन अ डे आपका और इफ देयर इज नो इशू तो आपका डेटा करेगा कि हर 2-3 घंटे में ये ऑटोमेटेड प्रोसेस चलता है. So why Unicode is not shown in our classes to ask this question? Sir, are you facing Nirav ji is आपका जो क्वेश्चन है आपको सॉफ्ट कॉपी में एक नंबर दिखता है और प्रिंटिंग में नहीं दिखता है ऐसा है या फिर आपको प्रिंटिंग में आ ही नहीं रहा है बिकॉज अगर यूनिक कोड जो है जैसे इस मेंशन अर्लियर वो तभी जनरेट होगा जब आप इन्वर्टर और मॉड्यूल का डेटा वो फंक्शन 2 विंडो में डाले हैं तभी जीआईआर में ये कोड जनरेट अदरवाइज डिस्कॉम के डेटा एप्लीकेशन पर ओपन क्या है cannot information हाँ सर नहीं नहीं सर मेरा क्वेश्चन ये था कि डिस्कॉम ने एक एप्लीकेशन मैंने की थी वो डिलीट कर दिया लेकिन इंफॉर्मेशन पोर्टल की ओर से ईपीसी कंपनी को नहीं मिला है और कंज्यूमर ने कॉल करके बोला था कि मेरा एप्लीकेशन है वो डिलीट हो चुका है क्योंकि मेरे को मैसेज मिला है लेकिन कंपनी को कुछ पता ही नहीं चलता है ईपीसी को जब पोर्टल में हम एप्लीकेशन डालते हो तो कोई भी बंदा अगर ईपीसी कंपनी अगर डिस्कॉम वाला डिलीट करता है तो पता तो चलना चाहिए ना ईपीसी कंपनी को क्योंकि एप्लीकेशन ईपीसी ने डाला है ये जो मैसेज अगर डिस्कॉम ने डिलीट करते समय मैसेज अगर वो मैसेज नहीं डालता हुआ इसलिए सर लेकिन पोर्टल में से एप्लीकेशन चली जाती है और कंपनी को पता नहीं चलता है तो हम बताइए कि हम आगे उसकी एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं बताइए बिना इंफॉर्मेशन कैसे डाल सकते हैं अरे सर डिस्कॉम ने जो भी किया डिलीट किया उसका दिक्कत नहीं है दिक्कत पोर्टल का है पोर्टल की ओर से मेरे को मैसेज आना चाहिए नहीं आना जब आपने लॉगिन किया कस्टमर को ओटीपी दिया और रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाता है कोई भी बंदे ने डिलीट किया डिलीट करने को दिक्कत नहीं है कर दीजिए डिलीट लेकिन डिलीट का मैसेज तो आना चाहिए कि नहीं क्योंकि हम दोबारा से उसको डाल सके ओके थैंक यू ये सर इसी बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जो कि हमारे पास ऑप्शन था कि उसका दोबारा से डाल दे तो हमने डाल दिया लेकिन कंज्यूमर का अगर कॉल नहीं आता और पोर्टल बंद हो जाता तो तब क्या होता सिचुएशन सर उसका रीजन भी उस बंदे ने नहीं दिया मैंने मांगा था और उसके आगे भी मैंने कंप्लेंट किया उसकी क्योंकि अथॉरिटी विदाउट एनी रीजन कोई भी डिस्कॉम एप्लीकेशन डिलीट नहीं कर सकता है अरे सर लेकिन पोर्टल इंफॉर्मेशन तो दे सकता है कि नहीं दे सकता है तो आपका अगर स्पेसिफिक कोई केस है तो इट हैज टू बी ट्रैक डाउन सर आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे अग्रीड आपका जो पॉइंट था कि ऑटो जनरेटेड मेक श्योर कि इट विल बी देयर कि जब भी डिलीट हो ऑटो जनरेटेड आपको एक मैसेज आ जाए यस अगर जब तक वो रीजन नहीं डालेगा आपको ये पता चला आप लोग देख सकते हैं
लेकिन सर 1000 एप्लीकेशन में से एक नंबर चला जाता है, तो ईपीसी कंपनी को तो पता नहीं चलेगा ना। एक एप्लीकेशन नंबर उड़ गया, सिस्टम में से ही निकल गया। सर लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि विदाउट एनी रीजन किसी भी बंदे ने अगर फ्यूचर में ऐसा किया है तो किसी कंपनी को ऐसा इश्यू ना हो। ओके ओके, थैंक यू। नीरव जी, आपका वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने वर्क एग्जीक्यूशन 2 में पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी एंड इन्वर्टर कैपेसिटी नहीं एंटर किया। आपको एंटर करके जनरेट करिए, आपको आ जाएगा। एंटर करके सबमिट कर दीजिए, वो पेज को सेव कर दीजिए, आपका डिटेल आ जाएगा। Still, if you are facing any problem, you please share the email ID, application number on the email ID. ठीक है, I believe हमने आपके बहुत सारे जो क्वेरीज थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को हमने आंसर कर दिए एंड थैंक्स अ लॉट। आई होप से काफी आपके क्वेरीज क्लियर हो गए और कुछ चीजें हम लोग को भी as one of the point was RPG that will take care or into more points that we can provide. Thank you all. Thanks once again for the unmuted active participation. थैंक यू सर, थैंक यू।